ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੈਨਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੈਨਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਨੀਰਜ ਭਾਟੀਆ CEO ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੈਨਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ECH ਯਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੈਨਟ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO ਤੇ COO ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅਨਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋ फाउंडर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ हैं कि ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ, क्या कारण थी कि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना पॉजिटिव प्लैनेट से पॉजिटिव अकेडमी लॉन्च कर रहे हो, क्या कारण? पॉजिटिव प्लैनेट एक सक्सेसफुल बिज़नेस है, UK बेस्ड बिज़नेस है जहाँ पे हम लोग टेलीकॉम्स, एनर्जी, पेमेंट्स, इंश्योरेंस वगैरह बेचते हैं और हम लोग के बैक ऑफिसेज यहाँ हैं। और जो हम लोगों का सक्सेस है 5 साल में वो उसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जो हमने इंडियन स्टाफ रखा उनकी वजह से। तो हम जब इंटरव्यूज़ लेते हैं लोगों के तो हमें लगता है कि कुछ कमी की वजह से या कुछ स्किल सेट की वजह से लोग रह जाते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती है। तो वी फेल्ट कि हमें वापस देने की ज़रूरत है। हम लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं यहाँ के स्किल सेट बढ़ाने में, जैसे रोमा ने पहले आपको अंदर बताया कि स्किल सेट बढ़े लोगों को ज़्यादा लोगों को हम भी नौकरी दे पाएँ, उनको बाहर भी जॉब्स मिल पाए। तो दैट इज़ द रीज़न वी आर डूइंग इट। जैसे आपने प्रेस नोट में लिखा है कि हम नौकरी देंगे ना 500 प्लस लोगों को, मतलब क्या कारण है कि मतलब कौन कौन से लोग होंगे उसमें? हम लोग के क्योंकि मैंने आपको बताया 5-10 किस्म के अलग अलग बिजनेसेस हैं और हर के लिए एक अलग स्किल सेट है। जैसे अगर हम लोग अपनी टेक्निकल टीम के लिए लोग हायर करते हैं तो हम लोगों को टेक इंजीनियर्स चाहिए, हम लोग डेटाबेस के लोग हो गए, .NET के लोग हो गए जो या ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, ये जो फ्रेशर्स हैं। जहाँ तक हमारे इंश्योरेंस का सवाल है, इंश्योरेंस जो हम लोग बेच रहे हैं वो कुछ हमें स्किल सेट यहाँ मिल जाता है क्योंकि इंडिया और UK में सिमिलैरिटी है। वरना अगर इवन BCom से उठ के या MBA से उठ के आते हैं तो वी कैन ट्रेन देम और उनको जॉब्स देना चाहेंगे हम लोग। जैसे आपने बोला था कि हमारे जो 2 ऑफिसेज, एक मोहाली में बना है और एक अहमदाबाद में, आपने उसमें लिखा है कि 6 ऑफिसेज होंगे, बाकी ऑफिसेज कहाँ पे होने वाले हैं? हमारे 6 ऑफिसेज अभी हैं। 3 UK में, 1 US में, 2 अभी यहाँ हैं और दोनों में करीबन 600 की कैपेसिटी है। इसमें 300 लोग ऑलरेडी हम लोग के पास काम कर रहे हैं और जैसे और ये 300 सीट्स भर जाती हैं तो और कैपेसिटी इन्हीं 2 ऑफिसेज में और बढ़ाएंगे क्योंकि उनमें और जगह है उसको और रैंप अप करने की। जैसे ये बता रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट मेन मकसद है इसका ना, उसमें क्या होगा, मतलब जैसे आप चूज़ करेंगे, बच्चे को चूज़ करेंगे, कौन कौन से मतलब यूथ होगा। जैसे हम देखते हैं कि पंजाब में बहुत ज़्यादा अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी आप बोल रहे हो कि पंजाब में अकेडमी जो शुरू होगी है ना, अभी लॉन्च किया आपने, उसका क्या मतलब पंजाब में पर्टिकुलरली किस लोग, जो कौन से यूथ होगा जो पार्टिसिपेट? जो देखिए 2 किस्म के, जैसे हम लोग अंदर भी बात कर रहे थे, अभी 2 किस्म के ऑडियंसेस को हम लोग कैटर करेंगे। जो ट्रेन होके या तो छोटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, या फ्रेशर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, तो इन्हीं तरफ फोकस, इन्हीं के दोनों के ऊपर फोकस है कि उन्हीं को स्किल सेट देंगे। इंडस्ट्री भी डिपेंड करता है कि किस बंदे को हम लोग सिलेक्ट करते हैं जॉब के लिए। और एकेडमी में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कोई भी अगर एक ग्रेजुएशन भी करके आता है तो उनको इतना तैयार कर सकें
कि वो उस लायक हो जाए कि उनको किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आगे करियर बनाने का मौका मिले। जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब जो बच्चे मतलब जो यूथ जॉब कर रहा है, जो फ्रेशर होगा ना, तो जैसे कई बार होता है कि जो यूथ होता है जो उसके पास कोई भी काम नहीं होता ना, उस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब डिफरेंट होता है, मतलब उसको डिफ़िकल्टी आती है कि मैं कैसे इसमें जाऊँ, कैसे ज्वाइन करूँ मैं इस चीज़ में? बिल्कुल। अगर इंटरव्यू के लिए जब भी फ्रेशर जाता है तो लोग उसको पूछते हैं कि एक्सपीरियंस लोग बहुत सारे आए हुए हैं, व्हाई शुड वी गिव यू अ जॉब। हम उन लोगों को तैयार करें क्योंकि ऑलरेडी हम लोग की कंपनी चल रही है, ऑलरेडी हमारे पास कस्टमर्स हैं, तो फ्रेशर को हम लोग लेके आ रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस ले सके ताकि वो जॉब मतलब उसकी हायबिलिटी बढ़ सके या उसको कोई हायर कर सके। और जितने भी फ्रेशर्स हैं जो सही में मेहनत करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं कि आएँ, हमसे सीखें, हमारे पास भी काम करें और बाकी जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनमें भी काम करने लायक बने। जैसे आपने बोला कि मतलब पॉजिटिव एकेडमी जो अभी लॉन्च किया ना, इसके बारे में लोगों को कैसे पता लगेगा? अभी तो हम लोग एक छोटे 100 लोगों से शुरू करना चाहते हैं कि हम लोग एक ट्रायल कर रहे हैं कि 100 लोगों को अगर ट्रेन करते हैं तो उसका क्या उसमें कमी है, हमारे कोर्स में क्या और कर सकते हैं। तो दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग और बढ़ाएंगे। तो अभी तो ऑलरेडी हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी लोग इंटरव्यूज़ के लिए अपने आप आते हैं। हम लोग कॉलेजेस को रीच आउट भी कर रहे हैं आसपास इसको प्रमोट करने के लिए। फ़िलहाल फर्स्ट ईयर में 23 में यही करने वाले हैं। 24 में जब इसको बड़ा करेंगे तो डेफिनेटली विल एडवर्टाइज इन मीडिया, वी विल रीच आउट थ्रू सोशल मीडिया और अलग अलग तरीक़ों से कैंपस सर्च नहीं बोलूँगा मैं इसको, कैंपस को रीच आउट करेंगे। तो कैंपस सर्च होता है जॉब्स के लिए। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बैक बेंचर्स हैं, इफ़ आई मे से दैट, उनको जॉब एनेबल करें। तो अलग अलग तरीक़ों से हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे और जितना बड़ा होता जाएगा प्रोग्राम और ज़्यादा मीडियम से मतलब राइट ऑडियंस तक पहुँचने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओवरऑल यूथ की बात करें तो ओवरऑल यूथ में जैसे आजकल हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है ना, जिसके पास जॉब है वो भी मतलब कम पे काम कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी पॉजिटिव एकेडमी के थ्रू? मैं एक पहला मैसेज तो अपने आप के से लेता हूँ। मैं अहमदाबाद या राजपुरा में पैदा हुआ पंजाब में और मैं ड्रॉप आउट हूँ कॉलेज से, ठीक है। अगर मैं ये कर सकता हूँ जो हम लोगों ने अचीव किया, आज हम लोग तकरीबन 12,000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुँच गए हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब कर सकते हैं। मेहनत करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं शुरुआत करने की ज़रूरत है। लॉन्च की है अंडरपेड, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। करंटली हमारी जो कंपनी है वो यूके बेस्ड है। यूके में हम 12 डोमेन में बेसिकली काम करते हैं। स्पेशलिटी हमारी जो है वो है पॉजिटिव एनर्जी एंड गैस, उसके साथ पॉजिटिव इंश्योरेंस है, पॉजिटिव पेमेंट्स है, पॉजिटिव ईवी चार्जिंग है, पॉजिटिव सॉल्यूशंस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑल एंड सो ऑन इज़ द लिस्ट। सो जब हमने कंपनी यहाँ पे स्टार्ट की 2016 में, बेसिक कमी हमें जो मार्केट में महसूस हुई वो ये है कि ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयबल ये इस वजह से है कि जॉब्स नहीं हैं, जॉब्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है, लोग जॉब नहीं करना चाहते, वो भी हैं। बट बेसिक गैप है जो एजुकेशन यहाँ पे वो ले रहे हैं और उसमें जो प्रैक्टिकल जॉब अवेयरनेस की कमी है, उसकी वजह से कई बार वो सिलेक्ट नहीं हो पाते जितना भी वो जॉब करना चाहते हों। कई बार छोटी छोटी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से वो रह जाते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ होता है, बट कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। कई बार कम्युनिकेशन स्किल है तो उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अगर अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उनको दिक्कत आती है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अच्छी कर लेते हैं तो उनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, जहाँ पे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बेसिकली, एंड देन दे गेट अंडरपेड। सो उस गैप को हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा प्राइम फोकस है। और ये सिर्फ एक डोमेन में नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास अलग अलग 12 कंपनीज़ हैं। तो अगर किसी ने MBA की हुई है, BBA की हुई है, वो फाइनेंस वर्ल्ड में जाना चाहता है, वो HR वर्ल्ड में जाना चाहता है, तो उसको हम उस डोमेन में ट्रेन कर सकते हैं। कोई एनर्जी में जाना चाहता है, उसको हम उस डोमेन में ट्रेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रेन कर सकते हैं। बोल रहे हो कि हम अलग अलग मतलब डोमेन में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इन लोगों को आप हायर कैसे करेंगे? ओके, सो बेसिकली करंटली ये जो सारे रिसोर्सेज हैं ये कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं या इन्हीं डोमेन में कहीं ना कहीं एजुकेशन इस वक्त ले रहे हैं।
राइट। कोई एमबीए कर रहा है इस वक्त, कोई बीटेक कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, कोई मैकेनिकल इंजीनियर की बीटेक कर रहा है, कोई डोमेस्टिक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है। तो हम बेसिकली इन सारे एरियाज़ पे रीच आउट करना चाहते हैं ताकि इनको पता लगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस स्किल गैप को कंप्लीट करने की। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत उनको ये आती है, जब भी कोई जॉब कर रहा है या कहीं स्टडी कर रहा है, तो वो स्टडी करते हुए जॉब की तरफ इसलिए नहीं जाना चाहता कि मेरी स्टडी हैम्पर हो जाएगी। कोई जॉब कर रहा है तो वो फर्दर एजुकेशन के लिए, फर्दर स्किल डेवलपमेंट के लिए इसलिए नहीं जाना चाहता कि मेरी जॉब हैम्पर हो जाएगी, राइट। तो जो जॉब कर रहे हैं, जो कि बेसिक लो इनकम पे जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ईजी सोल्यूशन है हमारे पास। वी हैव ए स्टाइपेंड, व्हाट यू आर अर्निंग उसको हम कवर करेंगे, तो आपको जॉब की तो कोई चिंता ही नहीं है। 1 साल भर आप आके सीखिए, उस गैप को कंप्लीट करिए और हमारे साथ ही काम कीजिए। इससे हमारी भी एम्प्लॉयबिलिटी इश्यूज जो है वो दूर होते हैं। इससे म्यूचुअल बेनिफिट दोनों के लिए, और जो कहीं उसके बाद 20% 30% हम कवर कर लेते हैं। जो बाकी के लोग हैं वो बाहर जाके जो भी उन्होंने स्किल अपनी डेवलप की है, ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस था, दे कैन गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़। स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास क्या है कि स्टूडेंट्स बाहर इसलिए नहीं जाते स्किल डेवलपमेंट के लिए बिकॉज उनकी स्टडी हैम्पर होती है। उनके पास 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं है, दैट्स द मैक्सिमम दैट दे हैव, राइट। तो उसके लिए वी आर हैप्पी, वी टेलिंग देम कि आप आइए 4-5 घंटे जो भी आपके पास है किसी भी टाइम में 24 आवर में, बिकॉज वी आर 24 आवर ओपन कंपनी। जैसे हम देखते हैं कि आजकल का जो यूथ है वो ज़्यादा फॉरेन की तरफ जा रहे हैं ना, तो आप जैसे आपकी कंपनी यूके में भी है ना, यूके में भी ऐसे ही मतलब आपने मतलब यूथ को करिया अपने साथ ज्वाइन किया हुआ है, और आपने अभी पंजाब में जैसे है ना शुरू किया है, अहमदाबाद में भी आपका है, उस पर क्या कहना? सो बेसिकली देखिए, इवन यूके जाके ही नहीं, अगर आप देखो तो जब भी कोई स्टूडेंट जिसकी एस्पिरेशन है कि मुझे कनाडा जाना है, यूएस जाना है, यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, सबसे पहले उनको दिक्कत आती है कि हम आईएलटीएस का कोर्स कर लेते हैं, राइट, कम्युनिकेशन की बेसिक। तो अगर आप हमारे साथ आते हैं, सो यू बेसिकली टेकिंग द लाइव ट्रेनिंग, वी आर एवरी सिंगल डे टॉकिंग टू ब्रिटिश कस्टमर्स, टॉकिंग टू यूएस कस्टमर्स, टॉकिंग टू कैनेडियन कस्टमर्स। तो वहाँ लाइव ट्रेनिंग है जहाँ पे हो सकता है जब आप हमारे साथ 6 महीने रहें, उसके बाद आप आईएलटीएस का टेस्ट दें बिना प्रिपरेशन के, आपके ज़्यादा बैंड आए ऐसे बच्चे से जो 6 महीने से किताबें पढ़ रहा है, राइट। ओके, सो दैट्स बेनिफिट नंबर 1, आपकी कम्युनिकेशन हम सुधार देंगे। प्लस आप वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं कि मैंने वहाँ पे मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करना है, मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है, इसमें करना है। हम यहीं से आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे के भेजते हैं उसी कंपनी में काम करने का, then that very course make more sense to you. Otherwise बाकी लोग तो ये सोचते हैं कि कोई सा भी कोर्स उठा लेते हैं वहाँ से और साथ में तो हमने जॉब काम ही करना है, राइट। बट दिस सर्व्स द एक्चुअल पर्पस। जिस भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं उस इंडस्ट्री में काम होता कैसे है एग्जैक्टली आप सीख के जा रहे हैं। और बेस्ट पार्ट पॉजिटिव एकेडमी का यही है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को या मैकेनिकल इंजीनियर को इंश्योरेंस सीखना पड़ेगा या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी। वी हैव ए बिग कैनवस, वी हैव 12 डिफरेंट डोमेन्स। सभी को अलग अलग चीज़। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, पॉजिटिव एकेडमी नाम बड़ा मतलब पॉजिटिव में जेड डाला हुआ है, वो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी क्योंकि मुझे मतलब क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं पूछूँ मतलब क्या कारण था कि आपने पॉजिटिव में जेड डाला? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ वी वांटेड फॉर आवरसेल्फ व्हेन वी स्टार्टेड दिस कंपनी कि कुछ बहुत ही मोटिवेटिंग हो। तो मोटिवेशन से ऑब्वियसली द पॉजिटिव वर्ड आप ड्राइव करते हो, उसमें फिर पॉजिटिव में ये था दैट वी वांट सेग्रीगेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्राउड एज वेल, सो वी चेंज द एस विद जेड, जिसने हमें अलग एक आइडेंटिटी दी। एंड देन दैट किक्स ऑफ बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी जो है वो, दैट्स ए 4 बिलियन टर्नओवर कंपनी बन गई 5 सालों के अंदर। देन वी स्टार्टेड पॉजिटिव इंश्योरेंस, पॉजिटिव पेमेंट्स, पॉजिटिव सॉफ्टवेयर्स, positive transport and all different things. So from there we took it, and then when we thought कि हम positive academy खोलते हैं तो फिर positive से बढ़िया word तो वहाँ पे था ही नहीं, so it was like very likely choice. ओवरऑल क्या कहना चाहोगे पॉजिटिव एकेडमी को लेके? आपके पास स्किल है, बस उसमें कोई थोड़ा सा गैप है कहीं पे, राइट। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, राइट। सो आइए मिल के उस गैप को दूर करते हैं, and then you can work for us or undoubtedly you can work for anybody else. So this is our CSR initiative, corporate social responsibility. This is not a product,
कोई हम बेच रहे हैं, इसमें कोई फीस नहीं है, इसमें कोई कैच नहीं है. जस्ट join us and let's grow together. Okay, thank you so much.